Hello and welcome to CVR News Network. You're watching CVR English and these are the details. Chhattisgarh Chief Minister Vishnudev Sai participated in Utkal Brahman conference held in Raigad, where he expressed his gratitude to the community for their support and dedication. He highlighted the historic victory of the Bharatiya Janata Party in the 2020 Assembly elections and thanked the people for their mandate. CM Sai praised the Utkal Brahmin community for their contribution to the success of Raigad's elected representatives and recalled the long-standing relationship with the community. He also discussed various welfare schemes, including Jal Jeevan Mission, aimed at improving water access in households. छत्तीसगढ़ की जनता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और उन पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजयी दिलाई थी। 54 सीट देकर हम लोगों को सरकार में बैठाने का आदेश दिया था। ऐसा ये दिन है, इसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ की समस्त जनता को उनके आशीर्वाद के लिए, उनके जनादेश के लिए पूरे छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बहुत बहुत उनका आभार करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को भी, पूरे उत्कल ब्राह्मण समाज का भी धन्यवाद करते हैं कि आप लोग रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आदरणीय श्री ओपी चौधरी जी को 65,000 मतों से जिताकर ऐतिहासिक विजय आप लोग दिलाए थे। उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और जहां रायगढ़ की बात आती है तो हमको लगता है कि हम अपने घर परिवार में आ गए हैं। कहे कि एक लंबी यात्रा, 20 साल की यात्रा, 20 साल तक आप लोगों का आशीर्वाद मिला। आप लोगों ने 4 बार सांसद बनाया और जब पहली बार सांसद बना तो उस समय आशीर्वाद थोड़ा था, 5800 की जीत थी। लेकिन जब चौथी बार आप लोग, गुरपाल जी आपका नाम मैं लेना भूल गया था, आदरणीय गुरपाल जी, लेकिन चौथी बार जब सांसद आप लोगों ने बनाया तो 2,17,000 का आशीर्वाद मिला। छत्तीसगढ़ की जनता हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और दिया था। ऐसा ये दिन है, इसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। Dhruv Patel, the president of TDI Ahmedabad, expresses serious concerns about the sudden and steep increase in the annual statement of rates proposed by Gujarat government. He stated that the new rates, which have been surged by as much as 2,000%, have caused widespread panic among the builders, farmers in the state. Patel emphasized that the increase was not scientifically or logically justified. Sustainable development goals, and these institutions need to be realigned for the global south rather than the global north. So you also mentioned about the COP29 was a failure. Can you explain a bit on that? I really feel that it did not live up to its commitment of providing adequate resources. This was meant to be the finance COP, and therefore the ambition of the global south was to have 1.3 trillion, because all the carbon space has already been occupied by the developed world, and that it has failed to live up to. Shiv Sena UBT MP Priyanka Chaturvedi criticized the ongoing uncertainty over the appointment of Maharashtra's Chief Minister. Calling it a sad situation, she pointed out that despite announced door ceremony on December 5th, the government remains clueless about the leadership, with no formal claims made to form the government. Chaturvedi questioned the lack of clarity, highlighting that while Jharkhand CM is already taken oath, Maharashtra remains in limbo, insulting the mandate received by the ruling party. नहीं, मैं मानती हूँ कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य हर रीजनल पार्टी से भी आते हैं, उनके रीजनल इंटरेस्ट भी हैं और उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर आग संभल में लगी है, अब अजमेर में लगाने की बारी है, कल हाजी अली में लगा देंगे, परसों निजामुद्दीन में आकर लगा देंगे। जहां जहां इनको सूट करेगा वहां वहां करेंगे।
तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब बना हुआ एक कानून है तो उसके साथ जो छेड़खानी हुई है, और मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहूंगी कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आग लगाई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, एक लूपहोल दिखाया है रास्ता, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का इस्तेमाल कर कर वो किया जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मणिपुर हो, संभल हो, अजमेर हो, बाकी सारे एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और वो जो यूएस कोर्ट का इंडाइटमेंट है वो भ्रष्टाचार का क्लियर कट मुद्दा है। तो वो हम सब एकजुट होकर ये आवाज कर रहे हैं, क्योंकि एक है महाराष्ट्र देश से भ्रष्टाचार का लेना देना, दूसरा है जो देश को आग की तरफ लेकर जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को क्या समझना चाहिए इस पूरे मामले के अंदर कि किस तरीके से वहां पर जो है उनके जो घटक दल हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। तो घटक दल कह रहे हैं कि संभल एक जैसा बड़ा इशू है, उसको समझना चाहिए। वो ये प्रश्न मुझे गलत पूछा है। आप कांग्रेस हाँ घटक दल है, मैंने आपको बता दिया। महाराष्ट्र में जिस तरीके से हेराफेरी हो रही है, महाराष्ट्र में अब तक मुख्यमंत्री नहीं तय हो पा रहा है, वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर आग लगती है सबके घर आएंगे उसमें, तो आग को काबू में लाने की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। इसलिए हमने भी आज जब वॉकआउट हुआ था राज्यसभा में, हमने रामगोपाल यादव जी के साथ उनको समर्थन देकर हमने भी वॉकआउट किया था। ममता बनर्जी के मामले पे क्या कहेंगे? टीएमसी के सांसद इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में भी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को अब लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। अगर ये सहमति बनती है, इंडिया ब्लॉक में सारे मेंबर्स आकर मीटिंग रखते हैं, प्रस्ताव रखते हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पर अभी माहौल ऐसा है कि बाई इलेक्शंस हुए हैं जहाँ पे आपस में लड़ाई हुई है, तो देखते हैं। वी विल वर्क अ सिचुएशन आउट, बट वी आर वेरी क्लियर कि कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे प्रजातंत्र के साथ नहीं। मैं मानती हूँ कि इंडिया ब्लॉक के सदस्य हर रीजनल पार्टी से भी आते हैं। Samajwadi MP Iqra Munawar Hasan emphasized the urgency of addressing the Sambal issue, stating that the loss of 5 lives and prevailing tense atmosphere in the region make it the most pressing concern at the moment. While acknowledging the economic importance of the Adani matter, she stressed that the loss of life should take priority. Regarding the Sambal violence, Hasan called for a fair investigation, criticizing the administration's role in exacerbating the situation, and urged strict action and sensitizing on such sensitive matters. बिल्कुल प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना काम करना चाहिए, ना कि किसी सरकार के हिसाब से उन्हें चलना चाहिए। और हमें लगता है कि हिंसा फैलाने में जो हाथ प्रशासन का रहा है उस पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर एक सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए प्रशासन में। जिस तरीके से सुबह याचिका दायर हुई, उसकी सुनवाई एकदम हो गई, फिर टीम भी गठित हो गई, फिर एकदम वहां पहुंच भी गए। जब तक हमारी अपील्स की राइट एग्जॉस्ट ना हो तब तक ऐसे किसी भी मुद्दे को इस तरीके से तेजी के साथ, किसी द्वेष भावना के साथ पूरा नहीं करने देना चाहिए। देखिए, जिस हफ्ते हमने संविधान दिवस मनाया है उसी हफ्ते इस तरह की हिंसा संभल में हुई है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा जो है वो देश को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाना चाहती है। और अगर इस तरीके से हम इन्हीं मुद्दों पर उलझते रहे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारी सबसे पहले मांग यही है कि संभल के जो अपराधी हैं, चाहे वो अधिकारी हो, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई हो और इस तरह की हिंसा ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइंस लेकर आए। बिल्कुल प्रशासन जिस तरीके से सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्होंने काम किया है, ये उस तरीके से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो थर्ड बॉडी है और उन्हें पक्षपात के बिना। Sarfaraz Ahmed of Jharkhand Mukti Morcha labelled the Sambal incident as a planned conspiracy and echoed Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav's concerns about the hasty judicial process. He criticized the rapid court proceedings, which he claimed did not allow the other party a fair opportunity to present in the case. Ahmed also condemned the government's handling of critical issues, including the matters raised both in Rajya Sabha and Lok Sabha, calling for a more democratic approach where political parties and parliamentarians have the opportunity to fully express their views. He warned against undermining the democratic traditions and stressed the need for open debate on important national issues. घटना थी, उसकी नियोजित साजिश था। देखिए, उन्होंने ठीक ही कहा है। अगर जो बताया जा रहा है
राज्यसभा में इस बात को भी उठाया गया उनके ही दल के नेता के द्वारा, और लोकसभा में उन्होंने बड़ी विस्तार उन्होंने बताया। 2 घंटे के अंदर किसी ने कोर्ट में आवेदन दिया मुंसिफ मजिस्ट्रेट के यहाँ, और उसका जांच हुआ और 2 घंटे के अंदर पूरे सब कंप्लीट करके, यानी दूसरे पार्टी को मौका भी नहीं देकर वो अपनी बात रख सके। तो निश्चित रूप से ये प्री प्लान्ड लग रहा है और भारत सरकार को संज्ञान में इन बातों को लेना चाहिए, क्योंकि देखिए संभल की घटना हो या अभी अजमेर शरीफ के बारे में भी लोगों ने किसी ने कोर्ट में कुछ दाखिल कर दिया है, या भारत के संविधान के ऊपर भी हम लोग नोटिस दे करके टाइम मांगते हैं डिबेट का। इन सब चीजों को लेकर के बांग्लादेश के बारे में भी जो हिंदुओं को उपायकरण हुआ उसके बारे में नोटिस दी गई। किसी बात का संज्ञान नहीं ले जाता है और सेट असाइड कर दिया जाता है, नोटिस को हटा दिया जाता है। ये परंपरा ठीक नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या माननीय सांसद किसी भी हाउस में इन बातों को रखना चाहते हैं, मौका मिलना चाहिए अपनी बात को रखने का। तो ये सब चीजें प्रजातंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं। Pramod Tiwari responded to SP's statement on the Sambal issue, emphasizing that his party has raised the matter in the parliamentary notice. Citing a violation of Places of Worship Special Provisions Act, Tiwari argued that the Sambal issue, along with other matters like the Manipur violence and the Adani controversy, are all significant, but asserted that BJP is using such incidents to divert public attention from its failures. He accused BJP of orchestrating a premeditated conspiracy to distract from economic issues and the government shortcomings. नोटिस दी थी, आज भी मैंने दी थी, और आज इस मुद्दे पर हमने ये कहा कि जो वर्शिप एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, सभी महत्वपूर्ण है अपनी जगह, सबका अपना अलग महत्व है। संभल में हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय सोची समझी साजिश है अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अडानी मुद्दे से ध्यान हटे, असफलताओं पे, आर्थिक असफलताओं से ध्यान हटे, जो देश में कमियां इन सरकार में आई उससे ध्यान हटे, और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ। उसके बाद मैंने जवाब दिया ना, संभल मुद्दा महत्वपूर्ण, अडानी मुद्दा महत्वपूर्ण, मणिपुर का मुद्दा महत्वपूर्ण, और मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, और सब लोगों ने सामूहिक निर्णय लिया था कि सारे मुद्दे उठेंगे और हम संभल मुद्दे को महत्व देते हैं। कांग्रेस ने कल भी संभल का मैंने ही नोटिस दी थी, आज भी मैंने दी थी, और आज इस मुद्दे पर हमने ये कहा कि जो वर्षिप Balakrishna Murugadas and ISKCON Dwarka Brahmachari expressed a deep concern over the arrest of Hindu monk Chinmay Das in Bangladesh, where his court hearing has been postponed until January 2025. Das called the situation unfortunate, highlighting the mistreatment of minority Hindus and other communities in Bangladesh. He emphasized that such violence and persecution are against the principles of peace and universal brotherhood taught in Sanatan Dharma. Das further stated that ISKCON Dwarka is praying for peace in Bangladesh, where minorities should be allowed to live and practice their religion peacefully. He attributed global unrest to lack of spiritual consciousness and called for widespread distribution of spiritual literature to foster understanding, brotherhood, and positive change. According to him, embracing spirituality and teachings of Sanatan Dharma can lead to transformation and harmony in the society. बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात है और वहाँ पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए।
सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति है और इस्कॉन द्वारका मंदिर में हम लोग भी इसी बात के लिए है और बांग्लादेश में शांति और सद्भाव के लिए बहुत सारे यज्ञ और हरिनाम संकीर्तन यज्ञ यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और निश्चित रूप से प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कार्य तो हो ही रहा है और साथ ही साथ प्रभु की कृपा भी बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जितना हमसे हो सके हम यहाँ कार्य कर रहे हैं और बहुत सारे भक्त हैं और बाकी संस्था के भी लोग साथ में आकर जुड़ रहे हैं। सो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। तो जैसे अगर कोई भगवत गीता का पालन करता है, भगवत गीता के संदेश को अपने जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करता है, तो ये भगवत गीता कोई सेक्टेरियन बुक नहीं है, ये पूरे मानव सभ्यता के लिए है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अहम बीज प्रथम पिता, मतलब वो सारे प्राणियों के पिता हैं। तो अगर यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हम करते हैं तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरे विश्व को साथ में ला सकता है और बहुत सारे उदाहरण अभी हम देखते हैं, चाहे रसिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, हर जगह भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता फॉलो कर रहे हैं, जीवन में अप्लाई कर रहे हैं और उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो ये शांति और सद्भाव का मैसेज हमें भगवत गीता में मिलता है। हमारा जो सनातन धर्म है वो हमें ये सिखाता है किस प्रकार से हमें समाज में इवन एक चींटी को भी कैसे हमें सम्मान देना चाहिए। तो ये हमें जो बताता है भगवत गीता का संदेश। तो हम इस कंक्लूजन में अगर कोई पहुंच रहा है तो ये हमारे लिए आश्चर्यजनक बात है कि कैसे इस कंक्लूजन है और सनातन धर्म को लेकर पहुंच सकता है। बिल्कुल बांग्लादेश में जिस प्रकार से हालात है और वहां पे जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदूज के ऊपर, सो निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा होता है जब किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति हो, भले किसी भी धर्म का हो, उसके साथ ये इतना तक दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। सो अभी बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति। And that's the end of the Inside News. Keep watching CBR News English.